So as we all know this, like today is the 54th anniversary of Mr. KK. What you would like to say as like daughter and son, as well as we have a singer with us. What you would like to say? I think, yeah, daughter and son should answer first because they know him like his birthday day. Looking forward to it. Like, we wish like Dad was here and we could hear us. Just a second, just a second. You're not coming in the. Okay. Roll, Shraddha. As we all know that today is the 54th anniversary of Mr. KK birth anniversary. So what you would like to say as you are like very connected with your dad? Yeah, I mean, we've been looking forward to doing this since a while now. Dad had never heard us perform on stage or I mean, sing Hindi specifically. So a lot of the times when we were in rehearsal, we were hoping, we were imagining him beside us and Holding just us, sing. wondering what he would be like, how his energy would be, and how excited and how he'd be joking around, and it's a bittersweet kind of a moment for me and Tamra. We're excited to bring the music for everyone who loved Dad, but it's also hard for us because we're just imagining how proud Dad would have been of us. Yeah, and it's weird to be like in Dad's place, like on stage, because normally we're in the audience and we're looking at him, and now we're on stage, and hopefully he's looking at us. Yeah. I mean, normally we see him perform with the band guys that we're going to play with, and now being able to do that with them makes us feel connected to him. So, I mean, we're just looking forward to. Excited. Yeah, we're excited. A little nervous too. Very nervous. Yeah, quite nervous, and we just hope the show goes off well. सर आप क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से आपकी बॉन्डिंग थी केके सर के साथ एंड Well, I introduced KK to the world of music as a young artist. और उस टाइम जब मैंने पल और यारो दोस्ती जैसे गाने के साथ KK को इंट्रोड्यूस किया था, it was an amazing time. मुझे याद है कि जब वो एल्बम रिलीज हुआ था, he came to me and he said, Les, finally my dream has come true. I've always wanted you to make my album and it's happened. और उसके बाद so many years later to recreate यारी नंबर 1, वही यारो दोस्ती का जो गाना है, and to have Nakul and Tamra sing for me in the same studio. और वही स्टूडियो में जहाँ केके ने गाया था, वही जगह पे जहाँ केके खड़ा रहता था, they stood and sang, and I think I'm blessed because I've got to live the whole song one more time with Yari number 1 and with Nakul and Tamra, and I think it's a very very special moment. और आज केके का बर्थडे है, तो मुझे लगता है कि he's also smiling, and मेरी तरफ से एक स्लाइस केक तो Yeah, I mean, Many slices of cake. one from my side is going to have for sure. It was a very special moment, and Leslie made it really comfortable for us. He was like, just do your thing. Yeah. There was no pressure, and it's just a very comfortable, fun environment, and that whole vibe of Yaro really got recreated because of that, And so, I mean, we couldn't be happier. We're excited to perform today. I'm totally looking forward to your performance. You know why? Because not only are you KK's kids and you're talented and all, but what I love about the way you take his songs and make it your own. I think, I just got Tarap Tarap, Tamra's version. I think it's fabulous. Thank so you. they've got the talent. So I think it's going to shine tonight. Thank you. Yeah. जिस तरह से सर ने अभी कहा कि स्टूडियो में जब आप दोनों को देखा तो केके सर की कुछ यादें आई, तो क्या कुछ सर से आपने सुना केके सर के बारे में, कुछ उस मोमेंट्स के बारे में क्या कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? Actually, like Nakul, when he went in to record his like few lines, we all, like me, Leslie, uncle, mom, we were shocked because we were just like, are you singing? Because it sounded exactly like Dad. So we thought they're just playing Dad's vocals. And then all three of us looked at each other like, are you singing? And it was Nakul. So that was like pretty cool. Nakul has never really sung in Hindi. Yeah. And for the first time he was singing in Hindi. So Abhay, जो sound engineer थे, he was the assistant engineer जब हमने यारो दोस्ती originally KK के साथ record किया था. Today he was the chief engineer. So he was sitting at and we have recorded KK so many times in the studio. We know what his voice sounds like on the speaker. और जब नकुल ने जो पहला लाइन गाया ना, I saw
अबे ऐसे कंप्यूटर पे था, ऐसा हो गया. Shocked, and I was shocked because it sounded like KK singing. So I'm really surprised that you sound so similar to your dad, but I think you got your own vibe, and I think that's what's going to make you special. Like he doesn't sound exactly like that, but he just No, has he's that. got the voice. He has that unique thing. You know what I mean? Like, He's got the voice, but the soul is his. Yeah. That's what makes it special. Yeah, it was a funny moment. I saw them kind of wince, and I was like, okay, did I do something wrong, or like did something technical happen? So I stopped singing, and I thought, they're playing back Dad's voice. And it was just a funny. It was yours. वेल जब ये चीज़ें पता चली कि आज फिनिक्स में कॉन्सर्ट होने वाला है, सभी न्यूज़ स्प्रेड आउट हुए, क्या कुछ कमेंट्स आए, कितने ट्विटर पे कितने ट्वीट्स मिले आप सभी को? लाइक देयर आर एन नंबर ऑफ फैंस स्टिल दे लाइक लिसन टू ऑल दैट सॉन्ग्स, दे रिमाइंड ऑल दैट. Yeah, for sure. I mean, Dad's fans have just been showing us like so much of love and like encouragement for this kid. it actually came as a shock to us because I mean we always knew Dad was big, but for us he was just Dad, And then when we started receiving these messages after Dad went, the kind of love that people have, genuine love, is. Yeah, it's like they haven't even heard us sing. They haven't yet. heard us sing, and they're like, we'll the love support you, for we Dad love is your just like voice. passed on to us like, without even like listening to us. So it's, I mean, So you can see how much goodwill he's created just with the songs and the personality that he was. And I think, because I've seen many people come and go in my lifetime, but when, unfortunately, that night when he left, I've never seen so many people shocked across the board. I was called by so many radio stations to be interviewed, but जो मुझे interview कर रहे हैं, RJ वो खुद रो रहे हैं. It's never happened to me. So it's all real. वो सब दिल से है, क्योंकि केके ने जो गाने गाए हैं सब दिल से गाए हैं और आपके दिल तक पहुँचे हैं, इसीलिए you love it. Because it's about nothing else. It's about music and his heart and his soul and his sincerity in what he sang. And I think that's why the people love it. वेल जिस तरह से सर ने अभी कहा कि गाने सुनते ही आरजे भी रो देते हैं, लाइक वही जो एक फीलिंग होती है, इसीलिए आप कुछ ऑडियंस के लिए अगर कुछ थोड़ा बहुत गुनगुनाएं, बिकॉज दे आर वेरी एक्साइटेड. Just sing some lines, yeah. दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है. Sir, lastly asking, I mean, there are many artists performing over here, Phoenix Market. क्या कहना चाहेंगे यहाँ का माहौल जो है, सबके लिए फैसिलिटी, all age group, there is a big entertainment zone over here. What do you say? I think first of all, at Market City Mall, I was just walking in and I said, what a fabulous concert area. Dublin Square में जो space है कि mall के अंदर हम actually हमारे audience और हमारे fans के लिए perform कर सकते हैं. I think that's not available in many places in India. So this is a very unique place, or I think we are privileged to perform here because whether it is raining or not, it doesn't matter. Everybody is in a comfort zone. It's beautifully done up, and I think it's a special place and rock and roll. It's like a world within itself, like its own little space. Yeah, there's no place like this. Yeah, and the fact that Dad performed here सिर्फ 5 महीने पहले ही is a big honor for us to be performing at the same place. Just excited and looking to get to it now. Thank you. We go to this stage now. This performance. Thank you everybody. Thank you. I wanted to tell you about something. I was trying to get you guys on. I'll tell you after. Because now, but there's something. Whatever. It's nothing new now. पीछे तो यहाँ वाइट पहले ना वाइट में ही भाई, तू जो बोलेगा वही सही है. पीछे भी बताना मेरे को.
पीछे सीधा चलते जा कुछ नहीं। रोल Rolling. So first of all, a very good evening. आज केके सर का 54th बर्थडे है, as well as like people are very eager to know that आज फिनिक्स मॉल में कॉन्सर्ट किया जा रहा है केके सर को like एक अप्रिशिएशन करने के लिए, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? ऐसे मौके पर एक ही चीज़ कह सकता हूँ, बस क्योंकि जहाँ भी रहे खुश रहे, दिल से दुआएं उसके लिए। उसने पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छा काम किया और इतना अच्छा काम किया कि लोग उसको हमेशा याद रखेंगे और उसके परिवार वालों को इतना कहूँगा। खैर उनके ऊपर क्या बीत रही है उनको वो लोग जानते हैं, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि बस सब्र से काम लो, क्योंकि कहीं गया नहीं है, हम सबके बीच में ही हैं और उसने इतना अच्छा काम किया है हम कोई उसको भूल नहीं पाएंगे। साथ ही सर ये भी जानना चाहेंगे कि जब केके सर और आपका कोई फर्स्ट प्रोजेक्ट जब एक साथ हुआ, कैसे साथ मिले थे, कुछ ऑडियंस को बताना चाहेंगे? अरे वो तो बड़े मज़ेदार था, बात कुछ और। उस वक्त मैं भी स्ट्रगलर था और केके को पहली बार मैं वहीं मिला था जब मैंने तड़प तड़प के का ट्रैक किया। फर्स्ट टाइम उसको तभी मिला था। तो सबसे अच्छी बात मुझे उसकी यही लगी थी कि बड़ा ऑनेस्ट था। मैंने जब उसको तड़प तड़प के गाना गा के सुनाया तो बड़े मुँह में आके बैठा है, अरे इस्माइल भाई ये गाना क्या मैं पॉप सिंगर हूँ, मैं इस तरह के गाने तो मैंने कभी गाए नहीं और इस तरह का गाना मैं गा भी नहीं सकता, ये तो बहुत मुश्किल गाना है। मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी मासूमियत देखा ना, वरना हर आदमी पहले ये सोचता है कि मैं कोशिश करता हूँ, हो गया तो गा दूँगा। इसका वैसा नहीं था, इसने पहले ही मना कर दिया कि इस तरह का गाना मैं गा ही नहीं सकता। तो मैंने कहा यार तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम ऑनेस्ट आदमी हो और मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज़ की ज़रूरत है, गाना कैसे गवाना तुम वो मुझको छोड़ दो। फिर बाद में आप बोलना मत कि यार मैंने ठीक से गाया नहीं या मुझे गाना नहीं आता है। बहुत बिंदास था वो। जब गाया तो ऐसा गाया कि आप यकीन मानिए तब से जो लोगों ने रोना शुरू किया तो आज तक रोए रहे। बहुत बड़ी बात है ना। एज वेल एज सर आज भी अगर आप कहीं भी अगर गाना सुनते हो तो लाइक कैसे एक कमबैक, एक यादें सब याद आ जाती है जब भी केके का आवाज़? देखिए जब तक हम लोग भी जिंदा है उसको भूल तो नहीं सकते। आपका काम ही आपको अमर बना देता है। उसने मेरा ही गाना नहीं, उसने और भी बहुत सारे गाने बहुत अच्छे गाए हैं। वो बात अलग है कि तड़प तड़प के एक यादगार गाना बन गया उसकी ज़िंदगी में। और मुझे हमेशा एक बात वो बोलता था जब भी कहीं रास्ते में मिल जाता था या कहीं स्टूडियो में, मेरी मुलाकात बहुत कम थी उसके साथ और कभी बात भी फ़ोन पे कभी नहीं। तो वो भी अलग तरह का इंसान, मैं भी अलग तरह का, लेकिन वो जब भी मिलता था बहुत प्यार से मिलता था और वो एक ही चीज़ ऐसे हाथ जोड़ के बोलता था इसमें बाहर आएगी और फिर वो वैसे ही मस्ती में ही मिलता था। बोलता यार आप आज मैं आपको सच बोल रहा हूँ, आप पूरी ज़िंदगी आप मुझे गाना मत देना, आपने एक गाना ऐसा दे दिया जब मैं पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। तो तब भी उसकी ऑनेस्टी में देख के बड़ा खुश हो जाता था और वाकई वैसा ही था, क्योंकि मैं तो कभी उसका लाइव शो देखा नहीं, बट जैसे उसके बैंड वाले थे जो उसमें से कल्याण गिटारिस्ट थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, वो हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे कि इस्माइल भाई मतलब केके के गुजरने के 15 दिन पहले तक भी उसने यही बात की कल्याण ने मुझसे कि आपके गाने के बिना तो शो कंप्लीट नहीं होता है और वो आपकी एक स्टोरी सुनाता ही सुनाता है। बोले अब तो इतना हो गया कि हम लोग ऐसे उसके केके के साथ में सारे डायलॉग बोलने लग जाते, हम लोग को भी याद हो गया, मतलब इतना सुन के पक गए। उसके मुझे ऐसे ही निकला था, 15 दिन पहले की बात है।
तो अच्छी बात है, क्योंकि वो किस्सा भी वैसा ही था जिस तरह उसको हम लोगों ने गाना डब किया था। वो कहानी भी वैसी थी, वो यादगार कहानी थी और उसने वो दोहराई हमेशा। क्योंकि सुबह 4 बजे उसको नींद से उठाया हमने स्टूडियो में, आ गया था वो 10 बजे, तभी मेरे ट्रैक पे काम चल रहा था। सुबह 4 बजे मेरा काम ख़त्म हुआ तो उसको हमने सुला दिया था वो चेयर पे, गाया, उठा, गाएगा ना तो बता हाँ गाऊंगा। वो सोचो सुबह 4 बजे उसने गाया ये गाना, कितना अच्छा गाया, सारी दुनिया को दिल को छू के निकल गया। साथ ही सर आज गौहर मैम का भी बर्थडे है, सो क्या कुछ विशेष आप देना चाहेंगे? दुआ है मेरी उसके लिए कि वो भी खुश रहे, उसका परिवार भी खुश रहे और हमेशा उसके परिवार को कभी ऐसा लगे नहीं कि वो चला गया। मैं चाहूँगा ऊपर वाले को कम से कम उन लोगों के साथ इतना व्यवहार रखना ताकि उनको मिसिंग ना लगे, क्योंकि बेटे की बीवी हो या उसके बच्चे हो, ऐसे में उनकी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ी चीज़ निकल गई है। मैं ऊपर वाले के लिए इतना ही बोलूँगा कि केके के जन्मदिन पर मैं ये गिफ्ट देना चाहता हूँ कि मेरी ये दुआ तो सुन ले, उसके परिवार को उसकी कमी कभी खले ना, हमेशा ऐसा लगे कि वो हमारे साथ है। थैंक यू सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल। आज केके सर का 54th बर्थडे है, सो आप सभी एक साथ यहाँ फिनिक्स मॉल में आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल। आज केके सर का 54th बर्थडे है एंड एज वेल एज आज हम फिनिक्स मॉल में इतना बड़ा कॉन्सर्ट है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे केके सर की याद में? पहली बात है कि बहुत अजीब लग रहा है कि कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में कि हम ऐसे आएंगे जब केके यहाँ नहीं होगा और केके का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे जब केके नहीं होगा। तो हम लोगों के लिए, सबके लिए, तीनों के लिए आई थिंक बहुत अटपटा मोमेंट है। बट ऑफकोर्स ज़िंदगी का सच है, ज़िंदगी तो चलती रहती है और मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ नकुल और तामरा के लिए, क्योंकि ये आज उनके केके की लेगेसी को वो लोग आगे लेके जाने वाले हैं और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर देम। एंड देन मैं चाहता हूँ कि तामरा और नकुल मेरे लिए जैसे केके ने गाया वैसे भी मेरे लिए वो भी गाए। तो हम लोग बहुत बहुत खुश हैं कि फॉर्मली वो दोनों लॉन्च हो रहे हैं। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि फिनिक्स मार्केट सिटी में ये प्रोग्राम हो रहा है। आई जस्ट वांट टू करेक्ट दैट। और मैं बहुत खुश हूँ कि नकुल और तामरा अपना डेब्यू कर रहे हैं, स्टेज का डेब्यू कर रहे हैं। श्योर इसको मैंने और भी गाने किए हैं और जैसा विशाल ने कहा, ऑब्वियसली इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन कि ये नहीं सोचा था कभी कि हम केके की एब्सेंस में हम उनको एनकरेज करेंगे, उसके सामने करते तो और अच्छा लगता। क्योंकि केके की जो वो स्माइल है, वो एक सिंपल पढ़ के साथ में उसमें हमें बहुत अच्छा लगता। स्कूल में भी केके ज्योति से मिलते रहते थे तो तामरा और नकुल की बात होती थी। इनफैक्ट बाद में केके गॉट सो बिजी विद हिज कॉन्सर्ट्स, हम सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए कि स्कूल में हम पेरेंट टीचर मीटिंग या जो कॉफ़ी हाउस या और प्रोग्राम्स होते थे हमारे बेटे आसमान के स्कूल में, वहाँ हम मिलते थे क्योंकि नकुल और तामरा भी वहीं स्कूल में पढ़े हैं। तो वो अजीब लग रहा है, लेकिन शायद ज़िंदगी में जिम्मेदारियाँ इसी तरीके से आती हैं और लेगेसी भी इसी तरह से शायद जाती है, चलाई जाती है, आगे लेके जाई जाती है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू तामरा एंड नकुल, फिर देखते हैं आगे साथ रहेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर?
बस यही कहूँगा कि मैं केके को बहुत मिस कर रहा हूँ। बस मैं इससे पहले भी यही कहा था कि केके का ओरिजिन इज फ्रॉम केरला, इवन दो उनका चाइल्डहुड पूरा दिल्ली में था, लेकिन जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और उनके गाने रिलीज़ हुआ करते थे, ढेर सारे इंटरव्यूज़ में ही यूज्ड टू से कि मैं ओरिजिनली फ्रॉम त्रिशूर केरला। बहुत गर्व की बात है हम सब के लिए। हम लोग भी वी वांट टू लुक अप टू समबडी ना, कि कोई हमें वो रास्ता दिखाए ताकि हम कैसे अच्छा सिंगर बने, और उन्होंने करके दिखाया पहले इन टर्म्स ऑफ मलयाली सिंगर्स इन बॉलीवुड, और ही इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्पिरेशंस, ताकि मैं वो स्टेप लूँ कि मैं इंडस्ट्री में आके एक सिंगर बन जाऊँ, एक म्यूजिशियन बन जाऊँ। सो उसकी वजह से मैं केके को बहुत मिस करता हूँ। डेफिनेटली मैं बस उनकी फैमिली और नकुल और सबको मैं बस लव और क्या कहूँ, बस दुआएं बस मांगता हूँ भगवान से, बिकॉज इट्स वेरी वेरी हार्ड मोमेंट, क्योंकि अगर सब लोग केके को जानते हैं, अगर कोई भी सुनेगा वो लोग जानते हैं कि केके इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन, हेल्दी, हार्ड वर्किंग, फैमिली लविंग पर्सन, और ऐसा एक इंसान को खोना इज़ वेरी वेरी पेनफुल। वेल केके की याद में क्या आप थोड़ा कुछ अगर उनके लिए गुनगुनाए, क्योंकि सभी फैंस आज देख रहे हैं और आज भी जब भी कोई सुनता है तो लाइक उन्हें लगता नहीं कि केके हम सबके बीच नहीं है, आज भी लगता है कि वो है, हमारे साथ ही है। इसीलिए शो का नाम केके फॉरएवर है। राइट राइट। अगर कुछ लाइनें अगर आप थोड़ा बहुत अगर केके के लिए गुनगुनाएं। उसी को मिल के गाना जी। यारो दोस्ती सब स्टार्ट दोस्ती बड़ी हसीन है, ये लबों को से बोलो ये जिंदगी है। वेल लास्टली सभी को आपका लाइक क्या मैसेज होगा लाइक केके के लिए आप सभी की तरफ से, बिकॉज देर आर एन नंबर ऑफ पीपल हु हैव केम हियर फॉर द कॉन्सर्ट, वेदर देर आर ऑफ एनी एज, सो क्या कुछ आप मैसेज देना चाहिए? बस यही कि आई थिंक हम सब कामरा और नकुल को बहुत सपोर्ट करें, उन्हें एनकरेज करें, बिकॉज दे आर वेरी टैलेंटेड। सो इतना प्यार केक को दिया था, उससे ज़्यादा प्यार नकुल दे नीड इट। थैंक यू। थैंक यू। यार धोनी जी उल्टा चलते हैं। मेरा चलने का अलग क्यों तरीके है, एक मैं पूरी तरह से अप डाउन है। अंदर यहाँ पे ये बॉल पे अच्छा है। चल चल सरक सरक। Yep. Come. अपने रोल। सो मैम आज केके सर का 54th बर्थडे है और एज वेल एज आज फिनिक्स मार्केट सिटी में लाइक दे हैव केप्ट अ कॉन्सर्ट लाइक उनके सन एंड डॉटर ने, आप क्या कहना चाहोगे? आज आप भी इसकी एक पार्ट है। आई जस्ट वांट टू से कि हम सब बहुत आई थिंक अ प्रिविलेज जनरेशन है जिन्होंने उनका म्यूज़िक सुना है एंड इट्स अ you have to
celebrate, you know, the amount of love he's gotten, the sort of songs he's done, and I think आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस उनके बर्थडे सेलिब्रेशन का पार्ट हूँ. अफसोस है कि वो आज हमारे साथ नहीं है, बट यू नो आई फील लाइक उनका पूरा करियर हम सबको सेलिब्रेट करने का आज मौका मिला है. एंड मुझे खुशी है कि आज मैं उस ग्रुप का पार्ट हूँ. वेल अगर आपको भी अगर कोई मौका मिलता है केके का कोई भी सॉन्ग का लाइक ऐसे गाने का, तो फिर आप कौन सा गाना गाना चाहेंगे? I don't know, I think all his songs, I'm a listener, ma'am. I think मुझे when you talk about KK sir, I've grown up listening to his songs, and just उनका song I think attempt करने के लिए you know बहुत बड़ी बात होती है, but I feel like I'm a listener, I'm a fan, and I would listen to all his songs. साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि आजकल की जो बॉलीवुड और जो टीवी इंडस्ट्री है, काफ़ी लोगों का ऐसे न्यूज़ आ रहा है, कभी किसी को कुछ हो जा रहा है, जैसे केके सर को लाइक अचानक ही जब उनका न्यूज़ आया तो वाकई बहुत शॉकिंग था. क्या लगता है कितने प्रेशराइज होते हैं आजकल सभी जितने भी स्टार्स हैं? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि कोई यू नो किसी की डेथ हो जाना इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट आई डोंट थिंक कोई अपने साथ ये जानबूझ के करना चाहता है. आई थिंक किसी सर्कमस्टेंसेस शायद लाइफ में पैदा हो जाती है दैट यू नो दिस हैपेंस. आई मीन इट्स वेरी सैड. Lastly, what you would like to say to all the fans of KK who are very excited to listen this concert? I just feel like you all should, irrespective of the concert, you know, just enjoy his whole career. I feel the kind of songs he's done. I feel like अगर हम you know, if he's one of your favorite artists, the fact that you just listen to his songs even after you know he's not with us anymore, I think is you know a blessing for us, and it's just I think ऐसे हम शायद उसको श्रद्धांजलि दे पाएं on a daily basis. तो मैम फिनिक्स मार्केट सिटी में पहले भी कई आर्टिस्ट परफॉर्म कर चुके हैं, नेशनल इंटरनेशनल आर्टिस्ट. तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यू नो एंटरटेनमेंट जोन है, हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ अवार्ड टू अवार्ड दिस फिनिक्स मार्केट सिटी. क्या कहना चाहिए यहाँ के बारे में, यहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में? एक्चुअली मैं यहीं रहती थी. मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ, एंड मैं बहुत आ चुकी हूँ मार्केट सिटी, एंड आई थिंक इट्स बिन यहाँ बहुत पिक्चरें देखी है मैंने. आई थिंक इट्स अ ग्रेट एनवायरनमेंट, एंड पीपल हैव परफॉर्म्ड हियर. आई थिंक इट्स वेरी ग्रेट, इट्स रियली गुड, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सॉर्ट ऑफ यू नो बीइंग ऑन स्टेज विद सम पीपल. आई एम नॉट गोइंग टू सिंग बट just share the stage with artists that are celebrating KK Sir's life today. Thank you, ma'am. Thank you. हट जाओ, साइड हो जाओ. सर कैसे हो? आप कैसे हो? देख के कॉन्सर्ट का मजा लिया कि नहीं? नहीं कहाँ गए? हम लोग तो हाँ, इसीलिए पूछ रहे हैं. वही इंतजार कर रहे हैं आपका. और आप हो क्या था? यहाँ बैठेंगे? यस. Well, hi Papon. First of all, a very good evening. As we can see, आज फिनिक्स मार्केट सिटी में बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है. केके को याद करते हुए आज उनका 54th बर्थडे है. क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? काफ़ी मिक्स सा फीलिंग है एक्चुअली. जब आ रहे थे यहाँ तो समझ ही नहीं रहा था, आ रहा था मुझे कि कैसा लग रहा है ना. सो बी ऑनेस्ट, इट इज़ काइंड ऑफ लिटिल लॉस्ट. नो celebration also, definitely we have to celebrate his music and him as a person also. वो इंसान भी बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही amazing थे actually. So that's why I think सब इकट्ठा हुए हैं. उनके बच्चों को भी मिला मैं, अच्छा लगा हमारा. और नकुल बहुत ही amazing है वो भी. I think जो मैं समझा हूँ कि उनको वो पिताजी से मिला है, वो एक जो ऑरा होता है, जो दुनिया को कैसे लेने के लिए with a pinch of salt वो वैसे ले रहे हैं. उनका ये अच्छा एक्सपोजर. आई रियली होप एंड विश देम ऑल द बेस्ट फॉर देयर करियर इन म्यूज़िक. मैंने सुना है बहुत उनके साथ जैम नहीं किया है, और अच्छे म्यूजिशियंस हैं, सेंसिटिव है.
सो या इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग डे, सब मिले हैं हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपका और के सर का कोई यादें अगर आप शेयर करना चाहो कि फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे। यादें तो एक तो उनके बैंड से बड़ा जुड़ा हुआ हूँ मैं, जो उनका बैंड का हिस्ट्री रहा है 25 साल से। कल्याण बरुआ, जेडी, रिंकू, लिंसे नाव पहले ड्रम्स में, लिंसे बाद में आया। जिस दिन लिंसे आया था उस कॉन्सर्ट का भी कहानी है आई थिंक। बहुत पहले आई वॉज गोइंग ऑन स्टेज बिफोर के और हमारा मतलब एक ही कॉन्सर्ट में हम दोनों बजा रहे थे, आगे पीछे था। तो वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक सो क्लोजली, और उन्होंने आके हमने थोड़ा टाइम बिताया वहाँ पे। और उस दिन वो लिंसे को टीटू से ड्रम चेंज ओवर कर रहे थे। लिंसे जो नया ड्रमर तब नया था, उसको बहुत सो के गिव मी दिस कॉन्फिडेंस ना, ऐसे मिलके आई वाज न्यू कमर इन द म्यूजिक सीन। तो ऐसा एक एनर्जी दिया उन्होंने कि मैं जो एक एंग्जाइटी होता है शो से पहले, वो रिलैक्स हो गया था। इसके बाद के का शो है, ये एक था कि इसके बाद के मुझे बचपन से सुनते आए हैं वन ऑफ द सॉन्ग्स, यारो पल। तो ही मेड मी वेरी कंफर्टेबल, फील एट होम। एंड देन मेरे शो के बाद जब उनको देखा मैंने, हाउ कंफर्टेबल ही इज ऑन स्टेज, ये एक तरह का सीख ही था मेरे लिए, बहुत अच्छा लगा। एंड ऐसे कुछ बातें हैं। साथ ही आजकल हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों को अचानक कुछ भी हो जाता है, मालूम नहीं पड़ता कि क्या लगता है कितना स्ट्रेस लेवल वो ज़्यादा ले रहा है। बिकॉज हाल ही में हमने देखा एक बिग बॉस की जो कंटेस्टेंट थी, उनको आज अचानक अटैक आया एंड शी इज़ नो मोर, as well as we have seen many more artists from the serial background also, and same happened with KK also. सॉरी आपको देख नहीं पा रहा, लाइट बहुत ही तेज है तो इट्स स्ट्रेस लेवल तो अब म्यूजिक और इंडस्ट्री में नहीं है, वैसे ही लोगों को इतना ज़्यादा बर्नआउट हो रहे हैं लोग। पहले लोगों के हाथ में इतना वक्त होता था, अब किस दोनों अब कुछ सालों से ऐसे लगता है कि टाइम इतना फास्ट जा रहा है। तो वो जो स्ट्रेस लोग ले रहे हैं वो तो है कहीं ना कहीं। आई थिंक वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस कि इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। आप नहीं भी रहे तो दुनिया चलता है। तो लगता है आप कैमरा खा नहीं रहे, कैमरा चला रहे हैं, नहीं चलाए तो कंपनी नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक हमें अपना टाइम चुराना है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने हेल्थ के लिए। एंड उसके बाद जो लिखा है वही होता है, वो तो कह नहीं सकते। इफ वी टॉक अबाउट के वाज अ फैमिली मैन, एंड वो हम तो ज़्यादा अपना मतलब सोशलाइज करते हैं शायद, वो मैं थोड़ा कम ही करता हूँ, वो मेरे से बहुत ज़्यादा कम करते हैं। तो ये तो किस्मत में जो लिखा है वी हैव टू जस्ट टेक इट एज इट कम्स। जस्ट सबको बोलूँगा कि कुछ खास ऐसा अचीव नहीं करना होता है, मतलब ठीक है जो दिल से कुछ करो, उसको कोई अगर रिस्पेक्ट आपको देगा, दिल से कर रहे हो रिस्पेक्ट, वो बहुत अच्छी बात है, उतना ही काफ़ी है। डोंट गो पुश योरसेल्फ सो मच कि आपका हेल्थ पे असर हो जाए। आई थिंक सबसे बढ़िया बात तो है कि हम इस दुनिया में एक और दिन जी पाए ना, वही बहुत खूबसूरत है। तो टेक वन डे एट अ टाइम, खुश रहे, अपने अंडरस्टैंड हू लव्स यू, स्पेंड टाइम विद द लव्ड वंस। उसके आगे जो लिखा है, जैसे लिखा है होगा। समथिंग अबाउट फिनिक्स मार्केट सिटी, इतने सारे कंसर्ट हुए हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट, नेशनल आर्टिस्ट, व्हाट इज अबाउट इन्वायरमेंट जो एंटरटेनमेंट जोन है, हर एज ग्रुप प्ले है। मैं चाहता था कि फिनिक्स सिटी गोरेगांव में हो, मेरे घर के पास ही, तो आने में बड़ा तकलीफ होता है, बहुत ट्रैफिक होता है बॉम्बे में कहीं भी जाओ। लेकिन फिनिक्स सिटी ही है जहाँ पे हमें कॉन्सर्ट करने को मिलता है। सो आई रियली एम थैंकफुल टू द प्लेस, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक जगह डिज़ाइन किया है, बहुत कमी है बॉम्बे में ऐसी जगहों का। सो आई थैंक देम। फिनिक्स सिटी हर जगह एक हो, मैं चाहता हूँ, और हर जगह हम शो कर पाएँ। बहुत शो मैंने खुद ही किया है यहाँ पे, एंड इट्स नाइस कि बॉम्बे में ऐसा एक वेन्यू है। लास्ट बट नॉट दी लिस्ट, अगर आप कुछ गुनगुनाएं सभी फैंस के लिए। आज माफ़ कीजिएगा अभी मुझे जाना ही स्टेज पे, मैं लेट भी पहुंचा, बट मेरे टाइम पे पहुंचा, मैंने लेट पहुंचा, बट माय सॉन्ग इज नाउ। थैंक यू। थैंक यू।